Good evening, everyone. Welcome again to our series that is pre warm up course for PCS, upcoming PCS, under which we are discussing previous year's questions from different subjects. Today is my turn, and the subject is Indian polity. And I have decided to discuss some questions from previous years on the topic as mentioned here, that is articles, schedules, and amendments. Right? So let's get started. The question number one. But before do I start, let me give you a brief information that our three batches are already running, and fourth batch is going to commence from 25th of January. So if you want to become a part of League of Successful Candidates, you can very well join it and take the benefit of mentorship, enriched mentorship that can be highly useful to you in order to sail through easily in this upcoming PCS exam. Let's get started. Question number one. It is the scanner. 2020 का क्वेश्चन है जी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द सिक्स्थ शेड्यूल हैज कन्फर्ड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ केसेस. द सिक्स्थ शेड्यूल हैज रिकॉग्नाइज्ड. तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्स्थ शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है. ये चार नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनमें कुछ ट्राइबल एरियाज हैं विच आर डोमिनेटेड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन, राइट. उनको डील करता है. वहाँ प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि उन ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स होंगे. मतलब उनको ऑटोनमस ट्राइबल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट की तरह गवर्न किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल काउंसिल्स. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी जिनके पास कानून बनाने की पावर होगी, ठीक है, थोड़े बहुत टैक्सेस लगाने की भी पावर्स होगी, ठीक है, राइट. और लैंड के रिलेटेड भी उनकी पावर्स होंगी. उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है. तो सिक्स्थ शेड्यूल कन्फर्ट द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल फॉर कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ. बिल्कुल वही मैंने बात पर डिस्कस किया. सिक्स्थ शेड्यूल रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस. वेरी वेल ट्रू. Hence, both statements are correct, and answer is 3, both 1 and 2. Next question. 2020 का क्वेश्चन है. As per the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognized of Forest Rights Act 2006, who has the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or family rights? Right? You must be aware of the fact that since British days, the tribals living in forest and consuming the forest resources, they were denied the rights of the forest produce and even to set up their habitation within the forest. This was a historical injustice, to the tribal people. So, in order to correct this historical injustice, Parliament made this act, that is Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Act Rights Act 2006, right? Under which you can very well imagine it is the Gram Sabha which has the power, the authority to determine the nature and extent of individual or family rights. तो आंसर इज ग्राम सभा. ठीक है, तो पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि एक्ट क्यों बनाया गया, और सेकेंडली किसके पास ये पावर है जो कि ट्राइबल्स के जो राइट है लैंड के ऊपर उसको डिसाइड कर सके. राइट, प्रोसेस फॉर डिटरमिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल फैमिली राइट्स. तो ग्राम सभा इज आंसर. अगेन 2020 को क्वेश्चन है. Which article of the Constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority group? Right. पहले तो आपको ये पता है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं, राइट, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है संविधान, आर्टिकल 20 एंड 30. ब्रॉडली ये राइट्स हैं उनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के, राइट, और उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का राइट है. राइट, हैविंग सेड दैट, उसी को और बॉल्स्टर या स्ट्रेंथन करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 350A डाला गया, जिसके द्वारा एक किस्म की ड्यूटी इम्पोज की गई स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर
कि अगर उनकी स्टेट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बच्चों को प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन की फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है, वो वचनबद्ध हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है एडुकेट इंस्ट्रक्शन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो किस आर्टिकल के थ्रू? तो आपने क्या ना, आर्टिकल 358, इसको 50A, इसको भी ए किस्म का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही कहते हैं, बट इट इज आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 358 इज द आंसर। 2018, which of the following is incorrect with regard to the schedules listed in the Constitution of India? And we already know that there are 12 schedules in the Constitution, right? So there are total 12 schedules, बिल्कुल correct है। शेड्यूल 11 एंड 12 बिल्कुल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, प्रोवाइडिंग फॉर पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपल सिस्टम। म्यूनिसिपैलिटी जब पंचायत आप कहिए कह सकते, ठीक है। इन शेड्यूल में सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो कि पंचायत के डोमेन में आते हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ के डोमेन में आते हैं। एज सच 11th शेड्यूल में 28 मैटर्स हैं जो पंचायत के डोमेन में हैं, और 18 सब्जेक्ट्स 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी के डोमेन में है। ये लोकल सब्जेक्ट्स है, लाइक electricity, right, like roads, right, sanitation, exhibition, fair, etc. अगर म्यूनिसिपैलिटी की बात करें, the 9th schedule was added to the constitution by first amendment. This is also correct. इसको इसलिए क्रिएट किया गया था नेहरू की सरकार ने, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को, बिकॉज certain laws had to be immune from judicial review, especially land related laws, right? Before these laws could be challenged in a court of law, right? एक शेड्यूल क्रिएट किया गया कि ऐसे लैंड सीलिंग लॉस को हम 9th शेड्यूल में रख देंगे और कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पार कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन द 10th। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऑफ कोर्स एंटी डिफेक्शन लॉ वाज added is in the 10th schedule of the constitution, but it was not added by 42nd amendment. It was added by 52nd amendment 1985, passed during Rajiv Gandhi's prime ministership. So fourth is the correct answer. Next, 2015. Which of these constitution amendment does not pertain to addition of the more language in the 8th schedule of the constitution? तो आपको पता होगा कि लेटेस्ट जो एडिशन हुई है हमारे संविधान में लैंग्वेजेस की, जो कि 8th शेड्यूल में 8वीं सूची की लैंग्वेजेस कहते हैं, दैट वाज बाय 92nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय वी एडेड डोगरी, मैथिली एंड संथली, ठीक है, इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, ठीक है, राइट। तो ये करेक्ट है जी। 71st अमेंडमेंट में भी हमने लैंग्वेजेस ऐड की थी, एंड 21st अमेंडमेंट में भी हमने लैंग्वेजेस ऐड की थी, but 29th amendment does not pertain to 8th schedule amendment in terms of addition of languages. Instead, 29th amendment is about placing Kerala land laws in 9th schedule of the constitution. So fourth is the correct answer. Next है जी 2015. Which constitutional amendment deleted the right to property from chapter 3 and made it a legal right only? Of course, this is 44th amendment, passed in 1978. कभी आपको सरकार का अगर नाम पूछे जाते कि किसने ये पास करवाई थी, तो इट वाज मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, दैट वाज जनता पार्टी गवर्नमेंट, राइट। और इसको आज की डेट में उस अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट करने के बाद इसको अलग आर्टिकल के अंडर, अलग पार्ट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग पार्ट में 300 कैपिटल ए आर्टिकल्स के अंडर इसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक किस्म का आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, रादर देन आप प्योरली इसको लीगल राइट कहना भी गलत होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि अब क्या है राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस, इज इट ए लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर आपको दोनों चॉइसेस आती हैं तो यू मस्ट मार्क कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 2014. Which of the following language is not mentioned in the 8th schedule of the Constitution of India? ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि राइट 22 लैंग्वेजेस आज की डेट में 8th शेड्यूल में रिकग्नाइज्ड हैं, और लेटेस्ट एडिशन वाज बाय 92nd अमेंडमेंट, और
3 लैंग्वेजेस 92nd अमेंडमेंट, जिसमें डोगरी, मैथिली और संथली मैंने आपको बताया। अब इसमें मैथिली भी है, नेपाली भी है, संथली भी है। ये सारी नेपाली को छोड़ के मैथिली एंड संथली एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट। Bhojpuri is not a language in the 8th schedule of the Constitution. Therefore, third is the correct answer. ये मैचिंग का क्वेश्चन है जी, ये 2018 में आया है, मैच लिस्ट 1। 93rd अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो पहले आप समझ लीजिए कि 93rd अमेंडमेंट जो थी, ये अनएडेड, जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन की बात करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मीनिंग दैट कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, राइट, नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल में होगी, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगी, बट अनएडेड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगी, ठीक है। तो इसमें से चॉइस आप मैच कर सकते हैं, राइट। रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, इंक्लूडिंग ओबीसीज, इंक्लूडिंग एससी एंड एसटीज आल्सो, ठीक है। ओबीसीज सिर्फ अकेला आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा, ये एससी, एसटी, ओबीसी, इवन ईडब्ल्यूएस के लिए भी होगी अब, तो उनके लिए है। तो ए का 3। 97th अमेंडमेंट, ये काफ़ी फेमस है, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट भी कहते हैं। इसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया हमारे देश में, 97th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 19 में ये राइट डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। आई थिंक दिस इज आर्टिकल 43B ये डाला गया, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ड्यूटी है स्टेट की कि उन कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन करेगी 43B के अंदर, राइट। तो 97 अमेंडमेंट को 24th अमेंडमेंट, ये तो यू कैन इजीली मैच यहाँ से, राइट। पार्लियामेंट्स पावर टू मैन फंडामेंटल राइट। तो पहले आप दो देख लिए जो आपको 93rd ए का 3 बन रहा है और बी का 4 बन रहा है। तो इधर देख लीजिए, ए का 3 बन रहा है, बी का 4 बन रहा है, ठीक है। सेकेंड का 1 बन रहा है एंड डी का 2 बन रहा है, दैट इज अबॉलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। तो हेंस 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। So this is all for today, and again the notification is here, that is next batch is commencing from 25th Jan, and you can very well join it and become a part of League of Successful Candidates with Abhimanyu's qualitative mentor. We'll be meeting again with another topic covering the previous year's questions. Till then, bye bye, stay blessed. Thank you.